Welcome students. In this class we will start class 9 geography chapter 2 physical feature of India. Now we are going to discuss the introduction part of this chapter. As the title denote the physical feature of India, it means in this chapter we have to study about the फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया. फिजिकल फीचर यानी इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में. अब जब हम फिजिकल फीचर्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? फिजिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं? माउंटेन, प्लेन्स, प्लेटोज, excuse me, mountain, plain, plateaus, desert, island, etc. So we have to study in this chapter about these all physical features and the India and its vast and varied landform. Okay, in this chapter we have to study about the vast and varied landform of India. Previously in a first chapter we have already studied that the India is the 7th largest country of the world and it occupies 2.4% of the world land mass. यानी पूरी दुनिया का जो टोटल लैंड मास है, टोटल लैंड है, उसका 2.4% इंडिया ऑक्यूपाई करता है. एंड एक्सेप्ट दिस वी हैव टू स्टडी इट्स इवोल्यूशन. यानी ये जो वैरिड लैंड फॉर्म है ये कैसे बने हैं. अगर माउंटेन है तो माउंटेन कैसे इवॉल्व हुआ, प्लेन है तो प्लेन कैसे इवॉल्व हुआ. सो what we are going to study in this chapter, the formation of land mass, the formation of Indian land mass. It means ये जो पूरा इंडिया का जो लैंड मास है, ये जो पूरा इंडिया है, ये कैसे बना आखिर. ऑब्वियसली कहीं ऊपर से तो आया नहीं होगा, कभी ना कभी ये जरूर बना होगा, तो कैसे बना. एंड द टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज. एक्चुअली वर्ल्ड के जितने भी लैंड मास है उसमें उसको फॉर्म करने में, उसको बनाने में टेक्टोनिक प्लेट्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है. तो हम देखेंगे कि कैसे इंडियन लैंड मास को बनाने में टेक्टोनिक प्लेट्स का क्या रोल है. सो एंड नेक्स्ट वन इज द मेजर फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया. सम आर so we have to study the major physiographical division like northern mountains, which is Himalayas, and the northern plain. This one is the northern plain region, which this is the Gangetic plain. And after that the peninsular plateau, the triangular land mass on India. This is the peninsular plateaus. And after that the great Indian desert, which also known as the Thar desert, and the coastal plains. Coastal plains, we have two coastal plains. One is the eastern coastal plain and next one is the western coastal plain. And then the island group. The island group, first one is the Andaman Nicobar Island, lie at Bay of Bengal, and second one is the Lakshadweep Island, lies in Arabian Sea. And after that we have to study that importance of varied physical feature. यानी ये जो physical features हैं, mountain, plain, plateaus, coastal plain, deserts, इन सब का importance क्या है in a term of India. Okay? So अब जब भी हम physical features के बारे में सोचते हैं तो हमेशा ही एक question हमेशा ही दिमाग में आता है, और वो है कि वाई द सच वेरिएशन अकर. इतनी सारी वेरिएशंस कैसे बनी हैं. सो इट इज एट्रीब्यूटेड मेनली थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स अकर, बिकॉज अर्थ पे डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स हैं जिसकी वजह से अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉर्मेशन पॉसिबल है. सो वी नो दैट द बेसिकली वी हैव अ 3 काइंड ऑफ रॉक, विच इज igneous rock, metamorphic rock and sedimentary rock. We know that the igneous and sedimentary rock, it present naturally, but the metamorphic rock are the rock basically those which form by the igneous and sedimentary rock under great heat and pressure.
यानी एक अंडर एक पार्टिकुलर सर्टन हीट और प्रेशर होने पर इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाते हैं, और इनकी वजह से अलग अलग तरह के रॉक फॉर्मेशन हमको ना सिर्फ लैंड फॉर्म में, ना सिर्फ लैंड पर, जबकि ओशियन फ्लोर पे भी देखने को मिलते हैं. Now the other important phenomena include weathering, erosion and deposition. So what happened in it, if there is a kind of rock, then what happened in a weathering, that it breaking of rock with the various weathering agent like water, wind, heat of the sun, and after that somehow the rock mass, जो टूटे हुए particles होते हैं, then these rock mass move or pushed away by any force. It can be water, wind and air, and this is known as the erosion. And finally it moves some away and start depositing, in area, then it's called a deposition. All these three process, weathering, erosion and deposition, occur basically in a glacier, arid region and the area of water action. Now move the other phenomena, which is the plate tectonic, included fault and volcanic act. Plate tectonic mean, previously it was believed that there is a single landmass known as the Pangaea surrounding by the bigger water body which named Panthalassa, and slowly and gradually with the convectional current it divided into two parts. The northern part known as the Laurasia or Angara land, and the southern part is known as the Gondwana land, and the region between two, which known as the Tethys Sea or river. So gradual deposition, it evolved in a present day as a Himalaya from the river Tethys, which we'll understand further in this video. And later on there was another theory which focused on plate tectonic. It explained that there are a plate and it have certain movement due to the movement it created by the interior of earth. However, these movement of the plate constructed the plate boundaries of on a earth, which commonly we have a 3 plate boundary, which we further discuss and explain in this video. There is a convergent boundary, divergent boundary and transform boundary. So the most of the volcanic and earthquake occur at the plate margin, and also some within the plate. Up there is a question that what is a plate margin? So look at here. The vacant space between two plate, हम लोग यहाँ देख सकते हैं there is a several line occur. तो ये जो lines है ये क्या है? दो प्लेट, यानी दो प्लेट के बीच का जो स्पेस होता है वो कहलाती है क्या है? प्लेट मार्जिन्स. तो इसलिए अब ये प्लेट मार्जिन्स यहाँ पे इट मीन्स क्या हुआ? हम जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो किसी संतरे की तरह अलग अलग परतों में डिवाइडेड है. द अपर पार्ट इज नोन एज द क्रस्ट, देन आफ्टर दैट मेंटल एंड कोर. जो कोर है वो काफ़ी मोल्टेन फॉर्म में है एंड इट फुल ऑफ मैग्मा. तो मैग्मा जो है मैग्मा या अर्थ की जो इंटीरियर पावर्स है वो वर्क करती हैं कहाँ पे? इन्हीं मार्जिन्स पे. इसलिए ज़्यादातर वर्ल्ड में जो वोल्केनोज और अर्थक्वेक हैं वो इन मार्जिन पे ही सिचुएटेड हैं. बट कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, एज some of the
some of the volcanic and earthquake activity also occur within the plate, जिसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है द हवाई आइलैंड ऑन अ पैसिफिक प्लेट। अब ये जो पैसिफिक प्लेट है, इस जगह पे, ठीक इस जगह पे, वे आई पुट द रेड डॉट, दिस वन इज द हवाई आइलैंड। और ये जो हवाई आइलैंड है ये पूरी तरह से पैसिफिक प्लेट के ऊपर है, जबकि हवाई अपने वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता है। सो this one is the example of volcano within the plate. And so before the understanding of tectonic plate, we have to understand how they evaluate, ये कैसे बने हैं, how they originated, and for knowing about it we have to understand the story of the origin of earth, which is shows in this video. So carefully see this video, okay? 5 billion years ago, a nebula cloud of gas came together by gravity. As it condensed, a piece of deliberate collide with each other, and it occurred friction of their collision which heated the rocks and formed the planet. One of those hot new planet was our young earth. Its interiors hot from friction, and its decay of radioactive element reach over 25,000 degrees Fahrenheit. Slowly, that the hot earth developed a cool, cracked crust. Those cracks formed the boundaries of a series of crust tectonic plate like this. That today broken into 17 pieces. The heat from earth formation incredibly still trapped inside our planet, and that rising the molten heat force of our planet apart in some places pushed together in each. It means these are the heat which push the tectonic plates. Clear? You can see that clearly. Here is the convergent boundary. So when the divergent boundary occur, it form a rift valleys, and when the continental tectonic plate collide to each other, it rises the volcanoes. There is a continental plate, and this is the convergent boundary. So it rises the mountains, and also it resulted the vast look at here, this is the formation of Himalaya. So it resulted the vast earthquake on the earth, and sometime it also resulted the vast tsunami when the continental and the oceanic plate collide to each other. It may be cause of the vast volcanic explosion. So now we have already understand how the tectonic plates originated and how it came to its existence. So let's begin the theory of plate tectonics. So listen student, this is the plate tectonic theory, which is very important for you because the specific question came from this theory. So separately I have explained to you.
So the plate tectonic theory, it's first time proposed by the Alfred Wegener, who was a meteorologist. He proposed this theory in 1915. Okay, Wegener proposed that the continent plowed through the crust of the ocean basin, which would be explain why the outline of many coastline like South America and Africa look like दे फिट टुगेदर लाइक अ पजल। अब क्या था कि इन 1915 ये जो अल्फ्रेड वेगनर थे, बिकॉज ये म्यूट्रियोलॉजिस्ट थे, तो ये क्लाइमेट के ऊपर कुछ रिसर्च कर रहे थे, जिनमें इन्होंने काफ़ी सारे वेरियस स्पीशीज़ के ऊपर रिसर्च किया और देखा कि सेम क्लाइमेट, यानी जो साउथ अफ्रीका के क्लाइमेट में पाए जाने वाले जो सरवाइव करने वाले जो फॉसिल्स हैं, यानी जो पुराने फॉसिल है, पुराने जीव जंतुओं के जो फॉसिल है, वही सेम कहाँ पाए जा रहे हैं, अफ्रीका में भी। इसका मतलब क्या था, या तो इन दोनों जगहों का जो क्लाइमेट है वो एक जैसा हो, जो कि पॉसिबल नहीं है आज के हिसाब से। अगर हम लैटिट्यूड और लैटिट्यूड की बात करते हैं, जिसके हिसाब से हम क्लाइमेट ये करते हैं, हीट जोन्स को देखते हैं, तो वो विच इज़ नॉट पॉसिबल कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका के सारे पार्ट का जो क्लाइमेट है वो एक जैसा हो, ये पॉसिबल नहीं है। या फिर साउथ अफ्रीका और इंडिया के पास का जो क्लाइमेट है वो एक जैसा हो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। और ऐसा भी नहीं है कि ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये काफ़ी पास हैं एक दूसरे के, जो ये जो एनिमल है एक कॉन्टिनेंट से दूसरे से तीसरे में जा सके। सो ऐसा कैसे हुआ, या तो ये जितने भी कॉन्टिनेंट हैं ये कभी एक साथ रहे होंगे। तो इसकी वजह से वेगनर ने क्या किया, इन्होंने मैप को देखा, और जब इन्होंने मैप को देखा तो इन्होंने नोटिस किया, ही नोटिफाई दैट द ये जो मैप है अफ्रीका, अमेरिका, इस साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एंड ऑल्सो द नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, ये सब क्या है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल एक पजल की तरह फिट बैठता है। अगर हम देखें तो साउथ अमेरिका का ये पार्ट अफ्रीका के यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है, वहीं इंडिया का साउदर्न पार्ट, इंडिया का ये जो साउदर्न पार्ट है ये भी फिट बैठ रहा है, नीचे अंटार्कटिका का बिल्कुल यहाँ पे फिट बैठ रहा है, उसी तरह से यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया फिट बैठ रहा है। तो इन्होंने सोचा कि हो सकता है कि ये सारे कॉन्टिनेंट एक टाइम पे क्या होंगे, एक साथ होंगे। सो दैट वेगनर कंक्लूड दैट दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल कुड ओनली एग्जिस्ट इफ दीज कॉन्टिनेंट वेयर जॉइंड टुगेदर ड्यूरिंग द परमियन। यानी परमियन एक एज का नाम है, जब हम अर्थ की हिस्ट्री को एजेस में डिवाइड करते हैं, पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, तो परमियन उस पार्टिकुलर पीरियड को नाम दिया गया है, परमिनियन, क्रिटिशियस, जुरासिक, लाइक दैट। सो एंड ही कॉइन्ड द टर्म पैंजिया, और इन्होंने ही एक सिंगल लैंडमास की कल्पना की कि ये सारा लैंडमास जितना भी हम आज देखते हैं, टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स, ये सब एक साथ रहे होंगे, और इस टोटल सिंगल कॉन्टिनेंट का नाम क्या होगा, पैंजिया। ओके, जिसका मतलब था ऑल लैंड। फॉर द सुपर कॉन्टिनेंट, इट मीन्स पैंजिया, दैट ही थॉट include all of the present day continent, but Wegener's idea were very controversial। अब उस समय के हिसाब से वेगनर का आइडिया क्या था, काफ़ी ज़्यादा controversial था, और because he did not have any explanation for why the continent move। अब इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी तो दे दी कि कॉन्टिनेंट्स जो है वो ड्रिफ्ट हुए, फ्लोट हो गए, लेकिन कॉन्टिनेंट क्यों फ्लोट हुए, इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो इस वजह से कंट्रोवर्सी काफ़ी बढ़ी और इसको माना नहीं गया, यानी इस पर्टिकुलर थ्योरी को मान्यता नहीं मिल पाई। बट आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, लेकिन टाइम के साथ फिर मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बहुत सारे साइंटिस्ट ने डेवलप की, एंड सिंस इट इमर्जेंस इन 1960, और 1960 में जाकर द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हैज़ गेन अ वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस एज द मॉडल ऑफ द अर्थ प्रोसेस।
और 1960s में जाकर ये मान लिया गया कि हाँ, प्लेट टेक्टोनिक ही वो थ्योरी है जिसके जरिए अर्थ का जो अपीयरेंस है, अर्थ की जो अपीयरेंस है वर्ल्ड की, वो आज बनी है. So look at here. However, according to the plate tectonic theory, this is a super continent, a single landmass which known as the Pangea. According to the Wegener's plate tectonic theory, पर्मियन यानी पर्मियन काल में, पर्मियन एज में आज से लगभग 250 मिलियन ईयर एगो एक सिंगल लैंड मास था जिसका नाम था पैंजिया. एंड इस समय हमारे वर्ल्ड के जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, जितने भी लैंड मास है, सब एक साथ थे और इन सब को मिलाकर एक सुपर कॉन्टिनेंट बना जिसका नाम हुआ पैंजिया. एंड आफ्टर दैट, in before 200 million year ago, at the time of Jurassic, these super landmass Pangea split into two part. ये दो पार्ट में बट गया. Why? Due to the interior force of the earth, due to the convectional current जो अर्थ के नीचे से निकलती है. सपोज जैसे हम लोग पानी में लहर होती है ना, सिमिलरली मैग्मा में भी उसी तरह की लहर, यानी मैग्मा भी कंटिन्यू फ्लोट होता रहता है और उसके फ्लोट होने की वजह से जो करंट बनती है, बिजली वाली करंट नहीं, उसके फ्लो होने की वजह से जो करंट बनती है, सो वो करंट कहलाती है कन्वेंशनल करंट. और उस करंट की वजह से ये जो सिंगल लैंडमास पैंजिया था, ये टू पार्ट में यानी दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, जिसके नॉर्दर्न पार्ट को लॉरेशिया या अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता है और जो साउदर्न पार्ट है ये गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है. अब लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के बीच में, अब यहाँ जो चारों ओर था एक लैंड, इस सुपर कॉन्टिनेंट के चारों ओर जो वाटर बॉडी था उसको पैंथालासा कहा जाता था. लेकिन अब यहाँ लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के बीच में जो लैंड वाटर बॉडी है वो क्या कहला रहा है, यहाँ पे टेथिस सी, और किसी किसी बुक में इसको टेथिस रिवर भी कहते हैं. सो both are correct, Tethys Sea or river. Okay, before 145 million year ago, अब क्या था, at the time of Jurassic, yes, Jurassic, actually the Jurassic is the time when the emergence or evolution of dinosaur and at the time of Jurassic वो पूरे वर्ल्ड में फैल चुके थे. तो इस समय वर्ल्ड जो था वो अपनी शेप ले रहा था. धीरे धीरे जो कॉन्टिनेंट्स थे वो क्या हो रहे थे, एक दूसरे से दूर जा रहे थे एंड ये कुछ ईस्ट और वेस्ट की तरफ ड्रिफ्ट हो रहे थे. लुक एट हियर, दिस इज द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. सर 65 मिलियन ईयर एगो वर्ल्ड लगभग अपनी एट द टाइम ऑफ क्रिटेशियस, जब डायनासोर्स का एंड होता है, इस समय लगभग जो वर्ल्ड है ये अपनी आज की जैसी ऑलमोस्ट पोजीशन ले चुका था. लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी थी. एंड दिस इज़ द साउदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, जो कि पहले ईस्ट की तरफ फ्लोट होता है एंड आफ्टर दैट ये नॉर्थ की तरफ फ्लोट होकर इस यूरेशियाई प्लेट से क्या होगा, जाके कोलाइड करेगा, टकराएगा. सो इन प्रेजेंट डे और वर्ल्ड लुक लाइक दिस. द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया कोलाइड विद द यूरेशियाई प्लेट. You can clearly see here there is a several plates. The bigger plate of the earth which is the Pacific plate, जो कि अर्थ के वेस्टर्न साइड और फिर यहाँ ईस्टर्न साइड में भी है. Then the Indian plate which is the known as the Indo-Australian plate, and then the Eurasian plate, then African plate, Antarctic plate, South American plate and North American plate. These are the bigger plates situated on our earth. So, and you can see clearly in this map, the red denote as the plate boundaries and the blue line denote as the plate movement, यानी plates का movement किस तरफ है. You can see here in India the
Indo-Australian plate move towards where? Eurasian plate, and also the Eurasian plate move towards the Indo-Australian plate. यानी ये क्या हो रही हैं, एक दूसरे से कोलाइड कर रही हैं. अब देखेंगे कि इसकी वजह से कौन कौन से लैंड फॉर्म्स क्रिएट हो रहे हैं. So let's begin with the first plate boundary, which is the convergent plate boundary. So these boundary happen where both plates move towards one another from a zone of subduction. यानी जहाँ ये मिलते हैं उस जगह पे ये कहाँ जा रहे हैं, मिल रहे हैं, यानी एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं towards each other. और क्या होंगे, जब एक पॉइंट पे एक दूसरे से मिलेंगे, एक प्लेट इधर से आ रही है, एक प्लेट इधर से आ रही है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनकी टक्कर होगी ही, ये आपस में टकरा जाएंगे, यहाँ एक कोलिजन होगा. और इस कोलिजन की वजह से लुक एट दिस, अब देखो क्या होगा, ये हो रहा है यहाँ पे, कहाँ, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियाई प्लेट, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें दिखाया था. तो व्हाट इज ऑकर हेयर, what is occur here? The Indo-Australian plate and Eurasian plate collide each other. अब यहाँ क्या हो रहा है, इन दोनों की टक्कर होने की वजह से कई बार क्या होता है, कन्वर्जन बाउंड्री में जब प्लेट एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं तो हैवी प्लेट जो होती है हमेशा वो कहाँ चली जाती है, नीचे एथेंसोस्फीयर यानी मेंटल की तरफ चली जाती है, जो कि पिघलकर बेसिकली मैग्मा में चेंज हो जाती है. और जो लाइटर प्लेट होती है वो ऊपर की ओर आकर माउंटेन के रूप में कन्वर्ज हो जाती है, जिसकी वजह से माउंटेन्स बनते हैं, like a Himalayan mountains. So this is the example of convergent boundary, convergent boundary की वजह से क्या बना है, mountain. तो mountain example क्या है, हिमालय. But sometime when the ocean crust, यानी जब ओशियन फ्लोर का क्रस्ट और एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपस में बढ़ते हैं, यानी व्हेन ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में कोलाइड होते हैं, टकराते हैं, तब क्या होता है, ओशियन क्रस्ट क्योंकि काफ़ी लेस डेंस होती है कंपैरिजन टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, सो दैट ये क्या होती है, पिघल कर मेंटल में चली जाती है. और कई बार क्योंकि इनके बीच दरार होती है, इन्हीं दरारों से मैग्मा निकलकर बाहर निकलता है और वॉल्केनिक एक्टिविटी के रूप में सामने आता है. So next one is the divergent boundary. These boundary happen when both plate move apart from each other. यानी ये बाउंड्री कब बनती है, जब दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं. सो द मिड अटलांटिक रीच इज द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ प्लेट. अब इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, मिड अटलांटिक रीच, जो कि अभी मैं दिखाऊंगी तुम लोगों को. सो न्यू क्रस्ट इज क्रिएटेड. अब क्या हो रहा है, इसमें जब दो प्लेट आपस में जा रही हैं, यानी क्या हो रहा है, यहाँ से अर्थ क्रस्ट, यहाँ नीचे मेंटल है, नीचे कोर है जहाँ मैग्मा है, ये मैग्मा चैम्बर है. अब ऊपर से ये दोनों प्लेट खिसक रही हैं, इट मीन्स क्या होगा, मैग्मा को ऊपर आने का मौका मिलेगा और इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, नया क्रस्ट क्रिएट होगा. क्लियर? Okay, next one is the transform boundary. These boundary happen where two lithospheric plate move apart, यानी ये मूव करती रहती हैं एक दूसरे से पैरेलल और मे बी फर्दर प्रीशियसली collide away from one another despite the transform flood where the plate are neither create nor destroy. यानी ना तो इससे कुछ क्रिएट हो रहा है ना कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है. ये इन प्लेट की मूवमेंट क्या होती है, आपस में पैरेलल होती है और इसकी वजह से कई बार रिफ्ट वैलीज भी बनती हैं. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ऑन द लैंड अल्पाइन फॉल्ट. यानी जब ये हटता है, सपोज यू कैन सी हियर, जब एक प्लेट इधर हट रही है, ठीक है, और फिर यहाँ आ रही है, तो इसके बीच क्या बन रहा है, फॉल्ट बन रहा है, स्पेस बन रहा है, गैप बन रहा है. और इस फॉल्ट की, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है अल्पाइन फॉल्ट ऑफ न्यूजीलैंड.
So you can see here the three example which I already given you in this video. First one is the Himalayan mountain is an example of a convergent boundary. There is a Eurasian plate and Indo-Australian plate which collide each other and resulted the formation of Himalaya. Okay, next one is the Mid-Atlantic Ridge. Okay, next one is the Mid-Atlantic Ridge. दिस वन इज द सैटेलाइट इमेज ऑफ द मिड अटलांटिक रिज. अब ये जो रिज है ये इतना क्लियर है कि इसे स्पेस से भी देखा जा सकता है. तो अब यहाँ क्या है, अफ्रीकन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के बीच में क्या है, डाइवर्जेंट बाउंड्री है, जिसकी वजह से ये क्या हो रही है, अफ्रीकन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, जिसकी वजह से अटलांटिक ओशियन में ये रिज बना है जिसको मिड अटलांटिक रिज के नाम से जाना जाता है, जो कि काफ़ी क्लियरली दिखता, विजिबल है बाय द स्पेस. सो इट्स अ एस शेप रिज. एंड नेक्स्ट वन इज द अल्पाइन फॉल्ट विच क्रिएटेड इन न्यूजीलैंड ड्यू टू द ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. देखो ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, दोनों क्या हो रही हैं, आपस में पैरेलल मूवमेंट हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ एक फॉल्ट लाइन बनी है विच नोन एज द अल्पाइन फॉल्ट. ओके, यू कैन सी हियर द साउथ अमेरिकन प्लेट एंड अफ्रीकन प्लेट. देखो अफ्रीकन प्लेट का मूवमेंट इधर है और साउथ अमेरिकन प्लेट का मूवमेंट इधर है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बन रहा है, मिड अटलांटिक ridge. So in further we have to study in this video about the formation of Himalayan mountain and the classification of mountain as the KLZS, which length is 2400 kilometer. It's 400 wide in Jammu and Kashmir and 150 kilometer in Arunachal Pradesh. And इसका जो कोर है यानी हिमालय का जो कोर है ये completely किससे बना है, ग्रेनाइट से बना है. ये रिसेंट है और अनस्टेबल है. क्यों अनस्टेबल है ये हम कमिंग वीडियोस में देखेंगे. एंड नॉर्दर्न प्लेट ये completely किससे बना हुआ है, alluvial deposit by the Ganga and its tributaries. Okay, and peninsular plateau is completely made by the igneous and metamorphic rock. Why? Because it's a part of the oldest landmass of Gondwana land, and rest of this Indian desert, coastal plain and island. We will see it in a next video.